you. Very good afternoon, all of you. Well, after the lockdown, it has been near about more than 1 year we have gathered again. And as far as today's program is concerned, whatever we have seen, the gathering, the total arrangement, the presence of the students, and as well as the presentation over the seminar, that was some kind of different thing if we compare it with the previous one. And if I talk about the study level after the 9 months of the education sector lockdown, so obviously that is appreciable. As far as our judging is concerned, you know very well that it's very hard task to judge the students who are the close one to your heart. Even all the students are sitting here, they are our lovely one. For a teacher, the existence of the student, that is totally like the parts of the bodies. If you have to choose one part over the whole body, then it would be tough to choose the one part as a special one over the whole body. Like a father, like a mother, if you are saying them to choose a one boy apart from all the 3 or 4 members in the family, so it would be tough one. Like that, being a judge, it's not the easy task here. If this is the speech competition or any kind of the judgment when a person has to do, he sometimes gets in a dilemma. What should I do? What kind of the conditions to be applied during the judging? What kind of the rules must be followed? What things to be observed? What things not to be observed? If I talk about ourselves, my dear students, your today's presentation is totally just on the behalf of the 3 things. That is a very primary, and during the learning, during the process of the teaching, we always focus on these 3 things. But except the 3 things, we have 2 things that is very special if you are going for the any kind of a competition over the India or apart from the India. If all of the students are sitting here and they have been looking for the job in overseas companies, in the multinational companies or any kind of the competitive examinations, that gives you the opportunity to prove yourself as the best one. So that all the 5 things will be measured, my dear. And if you are monitoring that 5 things, you are going to touch the sky and you are going to grab that dream for which you have been planning since your childhood. The 5 things which we focus on the things that are the 5 things, I would like to take the name. That is the speaking and the grammar thing. That is the basic part. While learning, we must focus on this thing. And you have to complete your timing, you have to complete your topic, you have to complete the paragraph which you have prepared for in the self-topic round. In the second round, when the chit round is concerned, you have to explain everything related to the chit and some kind of the grammatical issue which is always, it happens during the communication. When you are cramming everything or just you are not speaking by your heart. Why we insist on the natural performance? Because speaking naturally gives you time to breathe, to think a single moment, and it doesn't look cramped. Anything comes when it is a natural, that comes from the bottom of your heart, that steals the whole show. If I talk about the grammatical mistake, that happens when you feel hesitated, and for that the podium class is concerned. We conduct the podium class for the removation of the hesitation and as well as for just giving you the confidence level. That is the best part when you are facing any kind of a competition. ग्रामर का जो एक सबसे महत्वपूर्ण रोल है आपके जीवन में, वो ये है कि जब कभी भी आप एक कंपटीशन फेस करोगे तो उसमें आपकी जुबान से निकलने वाला एक लफ्ज आपके नंबर्स को या तो बूस्ट करता है या तो पूरे डाउन कर देता है. जब कभी भी आप कम्युनिकेशन करना शुरू करते हो तो कभी कभी कुछ आप ये सोचते हो कि मेरे पास 3 ही मिनट के मौके हैं, मैं पूरा पैराग्राफ एक बार क्रैम कर लेता हूं और उसके बाद में जब मैं अपनी बात को बोलूंगा तो शायद वो 3 मिनट कम पड़ जाएंगे, क्योंकि 3 मिनट लगातार बोलना कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन जब आप 3 मिनट यहाँ पे आकर के बोलते हो तो 3 मिनट डिसाइड करते हैं कि आप जीतोगे, कोई पोजीशन ले जाओगे या फिर फॉल बैक हो जाओगे. क्यों करता है? क्योंकि 3 मिनट अगर आप बोलते हो नेचुरली तो वो बिल्कुल ही अलग दिखता है एक क्रैम्ड परफॉर्मेंस से.
जिस चीज पे हम आपकी जजिंग करते हैं वो सबसे पहला चीज है आपका ग्रामर, जिसको हम स्पीकिंग के नाम से जानते हैं। आपके द्वारा किया गया एक एस या एस का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, अगर आपने ही गोस की जगह पे ही गो बोल दिया या आई गो की जगह पे आई गोस बोल दिया, तो वो एस या एस आपके एक मार्क को डिडक्ट कर देता है। मे बी समटाइम वी इग्नोर दिस, कभी कभी हम इस चीज को इग्नोर भी कर देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि एक जज के लिए, खासकर अगर वो जज आपका टीचर है, आपका ट्रेनर है, या फिर वो आपके माता पिता हैं, या फिर दुनिया में कोई भी है जो आपसे जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है अपने उन सारे स्टूडेंट्स में से, सारी परफॉर्मेंस में से एक किसी को बेस्ट वन चुनना। जिस दिन आप लोग एक माता या पिता बनोगे, या कभी बड़े भाई बहन आप होंगे, और आपके छोटे जो प्यारे प्यारे भाई बहन होंगे, उसमें से कोई आपसे पूछे कि आप किसको ज्यादा प्यार करते हो, मुझे या मेरे छोटे भाई को या मेरे बड़े भाई को, तो शायद आपको उस समय ये चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं किसको ही बात बोलूं, कि मैं किसको केयर करता हूं। ऑब्वियसली ऑल ऑफ द सेम फॉर यू, सारे लोग आपके सेम हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी को बेस्ट वन चुनने की, तो हमको कभी कभी थोड़े टफ डिसीजन लेने होते हैं। दैट टफ डिसीजन that decides what will be the future of those particular person। वो जो आपके टफ डिसीजंस होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि आपका भविष्य क्या बनने वाला है। बीइंग अ टीचर, कभी कभी हमको स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, कभी कभी जब आप बीच में बातें बोलते हो तो हमको गुस्सा करके अपनी बातों को, शाउट करके अपनी बातों को कहना पड़ता है। कभी कभी जब आप इल मैनर्ड हो जाते हो तो हमको आपको डांट भी लगानी पड़ती है। कभी कभी जब आप गलतियां करते हो तो आपसे 5-5 रुपए के सिक्के भी लेने पड़ते हैं फाइन के रूप में। ये चीजें चलती हैं। मे बी समटाइम आपके मन में ग्रज भी आता हो, आपके मन में ये बातें भी आती हो कि आखिरकार ये मुझसे लिया जाता है, दैट्स नॉट अप टू द मार्क, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन आपको पता है, जिस दिन आप उस पोजीशन पे पहुंचोगे तब आपको ये पता चलेगा कि ये जो स्पीकिंग है, इसमें 5-5 रुपए के सिक्के क्या अहम रोल फॉलो करते हैं। ये आज के दिन आपको पता चलता है, क्योंकि जब आप जजिंग की जाती है आपकी, और जो आपके द्वारा की गई मिस्टेक्स होती है, जब उनको मॉनिटर करके उसको राइट डाउन किया जाता है, तो आपको पता चलता है कि आपने जो 5 रुपए के सिक्के दिए थे वो कितने अमाउंट पे दिए थे। क्योंकि सचिन ने बात की थी, आप लोग सचिन को बहुत ही अच्छे तरीके से जानोगे, मैं आपके कुछ इंटरेस्ट की बात कर लेता हूँ। तेंदुलकर का नाम तो दुनिया में सब लोग जानते हैं। तेंदुलकर ने कहा था, जब आपको ये बात लगने लगे कि आप रास्ते से भटक रहे हो या आप अपने आप को भूल रहे हो, तो इस बात को मन में मेंशन कर लीजिए। नाउ यू हैव टू अगेन स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। आपको अब से सिर्फ अपने बेसिक पे फिर से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपको स्ट्रगल करने की जरूरत तब नहीं होती है, आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत तब नहीं होती है जब आप अपने आप को कंपटीशन में लेके आ रहे हो। एक हिसाब से इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप मेहनत करते हो, आप ये सोचते हो कि मैं खूब मेहनत करूं, तो उस समय हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है जब हम अपने आप को एक टीम में लाने का प्रयास कर रहे होते हैं। हम जब संघर्ष कर रहे होते हैं तो हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें हमारी मेहनत शामिल होती है। मेहनत तब होती है जब आप टॉप पे बैठे हुए हो, तो आप उस जगह पे बरकरार अपने आप को अगर बनाए रहना चाहते हैं, आपको तब मेहनत करने की जरूरत होती है। और अगर आप यहाँ पे 100 लोग बैठे हुए हो, 100 में से किसी एक की पर्सनालिटी, विकास सर के या किसी भी टीचर के या अपने फ्रेंड्स के या अपने माता पिता की नजर में, किसी की नजर में आपकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है और वो ये मानते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, तो आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा कृत्य, एक छोटा सा काम, शायद वो जो इमेज है ना, उसको शीशे की तरीके से तोड़ सकता है। तो जब कभी भी आप बैठते हो, आप किसी भी जगह पे बैठते हो, इन ऑडिटोरियम, इन मूवी थिएटर, और इन एनी काइंड ऑफ द सेलिब्रेशन लाइक मैरिज पार्टी और स्पीच कॉम्पिटिशंस, आपको एक डेकोरम मेंटेन करना होता है। क्या कि मेरी वजह से किसी और को प्रॉब्लम न क्रिएट हो। जीवन में जिस दिन आपने ये एक उद्देश्य और अपना एक प्रिंसिपल्स बना लिया, ये जो सिद्धांत होता है ना आपके जीवन का, ये आपको और हमें जो जानवर होते हैं, एक जानवर में और इंसान में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है कि एक इंसान के पास में अपने सिद्धांत होते हैं। अपने जीवन में एक सिद्धांत बनाओ पहले। आप कहते हो ना दुनिया में वो सफल हो गया, वो सफल हो गया, हम बहुत से सक्सेसफुल लोगों की बातें करते हैं। कोई सफल क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके जीवन में अपने सिद्धांत होते हैं। आप लोग अभी किसी ने संगीत माहेश्वरी का नाम सुना था, पर्सनालिटी के बारे में। संगीत माहेश्वरी ने एक बात कही थी कि मुझे पता है यार, एक समय में लोगों ने मुझसे कहा था, ही इज गोइंग टू बी द बेस्ट एंटरप्रेन्योर इन अपकमिंग 2 years और 3 years। ये मात्र 2-3 साल में बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनने वाला है। दैट वुड बी अ मिसाल, ये एक मिसाल बनेगा बेस्ट एंटरप्रेन्योर की। लेकिन उसने कहा था नहीं, ये मेरी लाइन ही नहीं है यार, मुझे लाइन में रहना ही नहीं है, क्योंकि मैं संगीत माहेश्वरी एक बन सकता हूं अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा।
लेकिन अगर मैं जो काम आज कर रहा हूं इसको मैंने 5 साल कर दिया तो मेरी तरह लाखों संगीत महेश्वरी पैदा हो जाएंगे और यही काम करते रहेंगे जो मेरे जीवन का उद्देश्य है, मैं इस काम को करता रहूंगा। ये उसका सिद्धांत था। आप लोग भी अपने जीवन में एक ऐसा सिद्धांत बनाइए कि आपको जीवन में पाना क्या है। अकॉर्डिंग टू अवर एक्नॉलेजमेंट, जहां तक मैं सोचता हूं, मैं पर्सनली अगर अपने आप की इंडिविजुअली बात करूं तो मेरे जीवन में एक बड़ी ऊंची पोस्ट की नौकरी पा जाना, दैट इज नॉट योर सक्सेस। वो आपका सक्सेस नहीं है। आप जिंदगी में संतुष्ट हो नहीं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, वो डॉक्टर बन जाते हैं, एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाते हैं, नेम फेम हो जाता है, दे आर वेल नोन इन देयर सोसाइटी, इन देयर कंट्री। एक सिविल ऑफिसर बन जाते हैं, एक साइंटिस्ट बन जाते हैं, स्टिल दे आर नॉट सक्सेस, दे आर नॉट फीलिंग सक्सेस देयर सेल्फ, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। वो कभी भी अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं महसूस करते। कारण ये है, फॉर व्हाट यू आर मेड, यू आर नॉट बिकमिंग दैट। आप वो नहीं बनने का प्रयास कर रहे हो जिस चीज के लिए आप हो। आप वो बनने का प्रयास कर रहे हो, वो प्रेडिक्ट कर रहे हो जो आप नहीं हो। पहले आप ये चूज करो आप हो क्या, आपको बनना क्या है जीवन में। अगर जीवन में आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो आप जीवन में उससे भी संतुष्ट हो सकते हो और पैसे एक अच्छे इंसान बन के भी कमाए जा सकते हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे तो जीवन में कभी आप गलत रास्ते पर नहीं जा सकते हो। और ये मेरी नहीं, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, जितने भी अच्छे अच्छे महान व्यक्ति हैं, जितने भी बड़े बड़े आपके पहुंचे हुए नीम फकीर, बाबा, साधु, संत, या किसी का भी आप नाम ले लो, ये उनकी बातें। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरीके की दिक्कत व्यक्तिगत जीवन में नहीं होगी। हाँ, वो सोशल लोग आपको कहीं ना कहीं हार्म करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर वो सारी कायनात की शक्तियां आपकी रक्षा करने के लिए आ जाएंगी। आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, चाहे वो जय हो रही हो सलमान खान की या कोई भी मूवीज रही हो, तो आप अपने आप में एक सिद्धांत बनाइए। आपके जीवन का सिद्धांत क्या है? ईमानदारी, मेहनत, सफलता, पैसे या फिर नेम एंड फेम। और अगर मैं बात करता हूं आपकी आज की प्रेजेंटेशन की, आप में से बहुत से लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो ये सोचते होंगे कि यार मेरी प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर है, लेकिन जब आप एक कंपटीशन में आते हो तो वो डिसाइड करता है आपका लेवल क्या है। और आज की कंपटीशन में ये स्पीकिंग आपकी डिसाइड की कि आपकी कितनी ज्यादा आपको अभी रिफॉर्मेशन की आवश्यकता है आपके ग्रामेटिकल पोर्शन में। सेकंड वन थिंग जो टाइमिंग होती है, मैं टाइमिंग को थोड़ा सा आपकी लाइफ से रिलेट करता हूं यार। बस ज्यादा से ज्यादा मैं 15 मिनट का समय लूंगा। आप लोग अगर 15 मिनट मेरे को पेशेंस से दे सकते हो, देन दैट विल बी समथिंग गुड फॉर मी एंड यू एज वेल। ये मेरे लिए भी थोड़ा सा बेहतर होगा और आपको भी बेहतर होगा। आपका जीवन कितने दिन का है? एक लिमिटेड टाइम का है, 20 साल नहीं यार, 60 साल का।